السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب شاہ صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن۔ آج کے شو میں شامل ہے مہنگی تعلیم اور اس سے جڑے مسائل، زبان و بیان اور خبروں پر تبصرہ، مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جناب شاہ صاحب کے ساتھ۔ جی شاہ صاحب، آج یہ کیا بن کے آ گئے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو سلام۔ آج آپ کا بھائی وکیل بن کے آیا۔ اچھا، اپنا وکیل خود، ٹھیک، کیونکہ وہ جو دوسرا انرجی سیور کے منہ والا ہے نا اس پہ مجھے یقین نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے وکیل ہیں۔ وہ جو بھی ہے، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہے کس کو کہہ رہے ہیں، نہ گناہگار کرائیں نا مجھے۔ دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں۔ کیا خاک زیادتی کر رہے ہیں؟ میں نے کیس کی تیاری کے لیے بلایا، وہ اپنے ساتھ دل تو پاگل ہے لے آیا کہ رات کو یہ دیکھتے ہیں، وہ تیاری تو کرتے رہیں گے۔ یہ مطلب تھوڑا کیس ہے ریلیز نہیں ہوا۔ جس وقت پیشی ہوئی اور وہاں پر مجھ پہ فرد جرم عائد ہوئی تو ان کا کہکا نکل گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں 100 روپے میں تو یہی ہوگا۔ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سر 100 دے کے کہتے ہیں بقایا بھی دیو۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، غلط بیانی کر رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں۔ وہ بہت اچھے وکیل ہیں اور آپ کا کیس بظاہر انتہائی کمزور کیس ہے، اس لیے وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا تو جیل جانا ہی پینا جی۔ اچھا یہ بتائیے سر، یار ایسا نہیں کہتے۔ نہیں چلو نہ جاؤ لیکن جانا پینا جی۔ جیل یاد رکھو، اسی نہیں چاہتے بھی تسی جاؤ لیکن جانا پینا جی۔ دیکھو جیل ہمیشہ بڑا، ساڈے وڈے ہو، اسی تانوں اپنے کول ویکھنا چاہنے مگر لیکن جانا پینا جی۔ یار بس کرو، میں بڑا نہیں ہوں، اور انہوں نے اپنے دوستوں فون کر دیتا میں پھر آ رہا۔ اور کچھ میرے بارے میں اللہ کرے جی تہاڈی ضمانت ہوے تسی صاف بری ہو لیکن جانا پینا جی۔ آبجیکشن میلاد، میرے فاضل دوست چبل مار رہے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ کو واقعی جیل جانا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ ہوتے جا کے پہلے رنگ کرن گے کس چیز کو؟ جیل جتھے رہنا سر۔ نہیں سر نہیں، سیریس ایک سیریس سوال ہے۔ آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، میں بے وفا نہیں ہوں۔ پورا بولے نا، میں بے وفا نہیں ہوں، یہی نام ہے۔ آگے یہ بھی لکھے نا، ہم بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کر نہ سکے، جینگا لالا ہوم، جینگا لالا ہوم۔ جی آپ نے جو 5 سال جیل کاٹی تھی اس میں آپ کو مچھروں نے زیادہ تنگ کیا تھا یا کھٹمل نے زیادہ تنگ کیا تھا؟ آپ وہی تو نہیں ہے وہ جو پریڈ میں پیچھے سے لگے ہوتے؟ وہ عوام ہیں، ان کا حق ہے یہ عوام ہے، یہ ونگ اسکوٹر کے منہ والا۔ جی شاہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان میں تعلیم کو جو ہے ہم فروغ دیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی دیہاتی ایریا میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، کیسی دی جا رہی ہے، کیسی نہیں دی جا رہی؟ میڈم میری ایک بات سنیں، بار بار آپ مجھ سے تعلیم کے سوال پوچھ رہی ہیں، میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں یہاں پر۔ اچھا سر، ایک سیریس بات، جی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کا کیس کمزور ہے؟ دیکھیے آپ کو غلط لگ رہا ہے، میرا کیس کمزور نہیں، میرے وکیل کا دماغ کمزور ہے۔ یعنی اعتزاز صاحب کا؟ جی اعتزاز صاحب کا، اور میں دیویا بھارتی کی بات کر رہا ہوں۔ میرا کیس وہی لڑ رہا ہے، وہ بجائے کیس کی تیاری کے پوری رات مجھے لگا ہوا انڈس ساگا سنا رہا ہے، سنا 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 سنا، یہ دیکھیں میرا منہ اڑپے جیسا ہو گیا، خدا کی قسم دل کرتا ہے اسے اڑپ کر جاؤں۔ شاہ صاحب صاف پتہ چل رہا ہے آپ سیریس بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں۔ کوئی اور مزیدار سی بات بتا دیں، اگر آپ نے وقت ہی پورا کرنا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے لکھ رکھا ہے کہ آپ کو بچپن میں بڑی مار پڑی ٹیچر سے، کیننگ ہوئی تھی، آپ کو سوٹیوں سے مارا گیا تھا، کیا کیا تھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، میں ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، آپ میرا پورا کریئر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اتنا بڑا جرم میں نے کبھی نہیں کیا۔ وہ جو ہمارا اسکول میں پی ٹی ماسٹر تھا نا، وہ جو سٹیاں مارتا رہتا ہے، اس کی جو، اچھا یہ پریکٹیکل نہ کیا کریں۔ میں وہ آپ سمجھ نہیں رہے تھے نا، یوں اس طرح سن رہے تھے، میں سمجھا شاید کنسیو نہیں کر پا رہا، کیونکہ کریٹیو آدمی کو کنسیو کرنا بڑا آرٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو وہ جو ہمارا پی ٹی ماسٹر تھا، ٹھیک، اس کی جو سیٹی تھی، اس کے اندر وہ جو ایک گول سا دانہ تھا، وہ میں نے کڑچ کر لیا تھا، کڑچ چوری کر لیا تھا۔ یعنی آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملی چوری کرنے؟ چوری آپ تو نہ کہیں نا، یہ تو میرا بڑا پن ہے کہ کہہ رہا ہوں، اچھا آپ نہ کہیں کہ میں چوری نہیں، کڑچ کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ میں نے لے لیا قبضے میں، اچھا کیس اوپن ہو گیا، اچھا، بس پھر بہت بری ہوئی، تو وہ پڑی مار۔ تو پھر آپ وہاں بھی پکڑے گئے؟ یہی میرا مسئلہ ہے، پکڑا ہر بار جاتا ہوں، معصوم آدمی ہوں۔ اچھا جی، اب ہیں معصوم آدمی، پکڑے ہر دفعہ جاتے ہیں آپ۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے
आखिर आपने खत क्यों नहीं लिखा? हमें तो कम से कम बता दें। खत तो हमने वैलेंटाइन डे पे नहीं लिखा। कॉमेडी है। देखिए ऐसे ही करते हैं हम। देखिए बात यह है कि वो जो खत था तो वो लिखने की कोई तुक ही नहीं बनती, और मैं क्यों लिखूंगा? देखें, अगर मैं खत लिख देता तो गुरुजी का जो पॉलिटिकल कैरियर है तो वो तो सबोताज हो जाएगा। आपकी पूरी पार्टी का पॉलिटिकल करियर सबोताज हो जाए। पार्टी तक नहीं जाने का। बहुत पर्सनल हो रहे हैं आप। तो गुरुजी के लिए मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा। अच्छा, ये तो इट इज डिसाइडेड। ठीक। और मैं अदालत का एहतराम करता हूँ। मुझे अगर इन्होंने निकाल भी दिया तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। वाह। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊं। हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारी तरजीहात में तालीम कभी सरे फहरिस्त नहीं रही। नतीजा ये निकला कि हम इस मैदान में भी बहुत पीछे रह गए हैं। फिर रही सही कसर निकाल दी तालीम की महंगाई ने। तालीम इस वक्त इस कदर महंगी हो चुकी है कि हमारे अवाम इसका ख्वाब देखने से भी कतराने लगे हैं। ऐसा क्यों है, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दे रखी है पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को। इनके साथ दीगर मेहमान भी शरीक गुफ्तगू रहेंगे। जी सर। हम अपनी कुल कौमी पैदावार का 1.5 से 2.5% तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। यूनेस्को ने ये हद लगा रखी कि कम से कम 4% मुख्तस किया जाए, और अगर आप कुल कौमी पैदावार की फ़ीसद के एतबार से ख़र्चा करने वालों की फहरिस्त बनाएं तो 193 ममालिक में पाकिस्तान 186वें नंबर पे है, 186 आउट ऑफ 193। अफ्रीका के वो ममालिक जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, वो भी अपनी कुल कौमी पैदावार का फ़ीसद के एतबार से हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अगर आपने पैसा ही नहीं लगाना तो स्कूलों की जो हालत है वो आपके सामने है। असातिज़ा नहीं हैं, स्कूलों में इमारतें नहीं हैं पूरी तरह से, अगर इमारत है तो जो लेबॉरेटरियाँ चाहिए वो नहीं हैं, दीगर सहूलियात नहीं हैं। बल्कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 56% स्कूल हैं जहाँ बिजली नहीं है, 40% स्कूल हैं जहाँ 4 दीवारी भी नहीं है, 35-36% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है और पीने का साफ़ पानी भी नहीं है। तो अगर आपने खर्च नहीं करना और आपकी तरजीहात में जैसे आपने कहा शामिल नहीं है, तो फिर जो हाल होगा वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर सामने आ जाएगा, वो वैक्यूम से फ़ायदा उठा लेगा। जो फीसें स्कूलों की हैं, प्राइवेट स्कूलों की, आप आगाह हैं बड़ी अच्छी तरह से। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था, MA MSc में एक साल में 12-13 हज़ार रुपये सालाना फ़ीस है। हमारे जो करीबी ममालिक हैं हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हिंदुस्तान का GDP 1.2 ट्रिलियन है, 1200 अरब डॉलर है। वो अपनी तालीम पे 4% खर्च करते हैं, 48 अरब डॉलर। हमारा 170 से 80 अरब डॉलर है, उसका हम अगर 2% भी खर्च करते हैं तो वो आप देख लें कि 3.4 अरब डॉलर है। तो दुनिया में जो मुल्क तालीम पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मसलन ईरान है, पाकिस्तान से आधी आबादी है और 330 अरब डॉलर उनका GDP है, हमारा 170 अरब डॉलर है। मिस्र है, आधी आबादी है पाकिस्तान से और 440 अरब उनका डॉलर उनका GDP है। ये क्यों है ऐसा? ये आला तरीन सतह पे जो एक फ़हम का फुकदान है, ये सिर्फ इसके सबब है और इसकी और कोई वजह नहीं। फिर प्राइवेट इदारों का क्या कसूर है? ओवर प्रॉफिटरिंग का मौका आप देते हैं उन्हें तो वो इससे फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो एक खला है उसको पुर करने के लिए वो आगे आ गए हैं। आखिर लोगों ने बच्चों को तालीम देनी है और अच्छी तालीम देनी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आजम भट्ट साहब, ये चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन के। भट्ट साहब जी, आप फरमाइए। जो भी हुकूमत आती है वो हर हुकूमत यही कहती है, हुकूमत असातिज़ा का एहतराम करती है, उन्हें इज़्ज़त देना चाहती है, मगर उसके बरक्स काम करती है। हर वक्त वो तज़लील करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे असातिज़ा ने बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मुकाम हासिल किया था कि उनको सरकारी कॉलोनियों में या सरकारी कोठी दी जाए, सरकारी रिहाइशगाह दी जाए, वो उनका वो ख़त्म कर दिया गया। कोई सरकारी टीचर जो है वो किसी सरकारी रिहाइशगाह पे नहीं जा सकता। असातिज़ा के बच्चों की फ़ीसों की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, असातिज़ा को फ़ीस माफ़ी की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इस तरह के जो भी सहूलतें जो पहले हमने तगोदो के बाद हासिल की थी वो सारी। एक लम्हे के लिए, क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त वाइस चांसलर साहब, ये बात भी सर ये भी करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका ताल्लुक शायद बराह रास्त मईशत के साथ नहीं है, ये माशरत का कसूर है। ये वो कैंसरस सिचुएशन है कि यानी टीचर हमारी प्रायोरिटीज में सबसे नीचे, ऑन द लोएस्ट एब है। यानी सरकार, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था
کہ جو مراحت ہیں جن کا تذکرہ بٹ صاحب کر رہے ہیں ان میں جو ٹیل اینڈ پہ موجود ہیں وہ ٹیچرز ہیں. یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ کے سب سے لائق فارغ التحصیل لوگوں کو آنا چاہیے. جی اساتذہ کو ہر قسم کی ناجائز جو غلط قسم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مطلب الیکشن کی ڈیوٹی، ووٹ بنانے ہیں، ڈینکی کا چکر ہے، پولیو کے قطرے پلانے ہیں، سب ڈیوٹیاں اساتذہ کی لگائی جاتی ہیں. اگر اساتذہ جس وقت آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو گھر سے اندر آواز آتی ہے بھائی معاف کرو. اوہو. تو وہ کہتے ہیں میں معافی والا، میں تو ٹیچر ہوں. یہ اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اس کے لیول سے بہت نیچے کی بات. وہ گھر والے کہتے ہیں جی گھر پہ نہیں ہے، شام کو آنا. پھر وہ شام کو جاتے ہیں، اپنے جی ووٹر کے نام لکھا دیں. وہ کہتے ہیں جی میرا ابھی اب چچا نہیں آیا، وہ آ کے لکھا دے گا. اس طرح کر کے ان کی تذلیل کی جاتی ہے. پہلے جی ماسٹر نوں پولیو دے قطرے پہ آن تے لاتا سر انہوں نے. وہ قطرے پہ آ کے انہوں نے اپنے منہ ماشکیاں ورگے ہو گئے سر. ماشکیاں کیا؟ بھیشتی سر تنخواہ کرتے ہیں بچے نواؤں نے. پلوانا نواؤں جہاں پلوان ٹہ جائے نا، اچھا وہ گرمی ہوا ہوا ہوتا غصے سے انہوں پھر نواؤں مشق نال، وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا. تو جب پلوان ٹھنڈا ہو جاتا پھر وہ کلفیاں لا. یہ جو ایک معمولی سیکشن آفیسر ہے یہ ٹیچر کی جب چاہے تحقیر کر دیتا ہے، تذلیل کر دیتا ہے کہ آپ حاضر ہوئیں. وہ جو آپ نے لینگویج کبھی دیکھی ہے وہ کیسا لیٹر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی جو نوکر شاہی ہے اس میں انگریزوں کے اوصاف تو نہیں ہیں، لیکن ان کی گردنیں اسی طرح ہیں جس طرح انگریزوں کی ہوا کرتی تھی. سر اب تو جھک جانی چاہیے، شرم سے ہی جھک جانی چاہیے ڈیلیوری دیکھ کے. یہ جو تربیت کا نظام جس سے گزرتے ہیں اور جس طرح پھر ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں فوج تو بہت بعد میں آتی ہے، بیوروکریسی کا سب سے زیادہ اس میں رول ہے. بالکل. اور اگر یہ لوگ اتنے تنگ ہیں یہاں بیوروکریسی سے، تو بیوروکریٹ اگر جو بلوچستان میں یہاں پنجاب سے جا کے بیٹھے لوگ ان سے کتنے تنگ ہوں گے. جی میں آپ کو اساتذہ کے معاشی مسائل کے بارے میں اس فورم کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی سی اساتذہ جو ہیں ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ ان کا اپنے کنبے کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ تقریباً جو فریش بھرتی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپے ہے. اچھا. تو 10 سے 12 ہزار روپے میں کوئی بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. میں اب جب میں ادھر آیا ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جیو کے فورم میں آ سکوں. میں اسٹیشن سے پیدل چل کر یہاں آیا ہوں آپ کے فورم میں شرکت کرنے کے لیے. شاہ صاحب ویسے یہ شرم کی بات نہیں ہے جو یہ پی ٹی سی ٹیچر بتا رہے ہیں کہ چل کے آئے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ویگن یا رکشے پہ آ جائے؟ دیکھیں چلنے میں کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، یہ صحت کے لیے اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے 10 سے 12 ہزار روپیہ ماشاءاللہ اتنے پہ. آپ کو پتا 10 سے 12 ہزار کے اتنے کے نو آ جاتے ہیں. جی میرے اپنے علاقے میں ایک بچے نے استاد کے ڈانٹنے پر خودکشی کر لی گورنمنٹ اسکول میں. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ بکھر کی بات ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. اور یہ خودکشی کر لازم بات ہے، ٹیچر کے اپنے گھر کے مسائل تھے، اپنے وہ معاشی پرابلم میں گھرا ہوا ہے، اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے کہ وہ یہ سرکاری ادارہ تھا. سرکاری آپ کو خاک جائے گا سرکاری ادارے میں جس کا امپریشن یہ بن جائے، بچے کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے ہم کہیں کسی تندور پہ کام کر لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. جی ایسا صرف گورنمنٹ سکولز میں ہوتا ہے، اور ٹیچر جو ہیں وہ گورنمنٹ سکولز میں بڑا بڑا لکھا تو جاتا ہے کہ مار نہیں پیار، لیکن اس بات کو صرف فالو نہیں کیا جاتا، پھر بچے سوسائڈ ہی کریں گے نا. اچھا جی، ہم اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا جی، ہمارے پاس اس وقت نمائندے موجود ہیں پرائیویٹ سکولز کے. جی یہ جو رائے ہے کہ پرائیویٹ ادارے مہنگے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. پرائیویٹ اداروں میں جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان سب کو ہم ایبسولوٹلی فری 3 روپے 33 پیسے پر منتھ پہ پڑھاتے ہیں، کتابیں بھی فری دیتے ہیں، یونیفارم بھی. نہیں سر، وہ کتنے کو ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کسی کا بریڈ ونر فوت ہو جائے ڈیورنگ ایجوکیشن، ہم فری پڑھاتے ہیں. ہم فری ایجوکیشن تقریباً 30% اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، جس میں بعض کو ٹیوشن فی فری، لیکن اس میں ہم ریلیکس نہیں ہونے دیتے. 80% اٹینڈنس مینٹین کرنی ہوتی، اور ہم بہترین فیسلٹیز دیتے ہیں. دیر از نو کالج ان پنجاب اور ان پاکستان جس کے تمام کلاس روم ایئر کنڈیشنڈ ہو، تمام ٹوائلٹ دن میں 3 دفعہ ڈیوڈرنٹس کے ساتھ واش ہوتے ہو، بہترین لائبریریاں ہیں، بہترین لیبارٹریز ہیں. لیکن سر یہ آپ خواص کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ ایئر کنڈیشن کرنے کی بجائے اس کو مزید ڈیلکس
शक्ल देने की बजाय आप थोड़ी सी ये फैसिलिटीज कम करके फीस को कम कर दें ताकि आम लोगों की लेकिन जो एजुकेशन में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम उनको फ्री दे रहे हैं, वही तमाम फैसिलिटीज के साथ। सर, अच्छे जो पे कर सकते हैं उनसे हम लेते हैं। अगर देखा जाए तो आप ये वो काम कर रहे हैं जो कागजों में, किताबों में नसाबी तौर पर ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, लेकिन यकीन कीजिए इसके असरात इंतहाई गलत और इंतहाई खतरनाक हैं। ये हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे ग्लोबल बात कर रहा हूं कि महंगाई की ये जो लहर आ गई है ना पूरी दुनिया में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यकायक कोई 5-6 करोड़ लोग इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए। ये समझ रहे ना आप, सिर्फ 5-6 करोड़ लोग जो इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए, उनकी कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा हो गई है। सारा किन्नो वो खा जाते हैं, सारा चौसा आम वो खा जाते हैं, गोश्त की कीमत उनकी वजह से बढ़ गई है, सोने की कीमत, एजुकेशन की कीमत, पेट्रोल की कीमत। सर, इन चीजों को कम से कम तालीम के हवाले से सर, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हम उन्हें वेलकम करते हैं अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो। अगर वो नंबर अच्छे नहीं और वही टॉपर बनते हैं, क्या वजह है कि प्राइवेट कॉलेजेस से इतने टॉपर निकलते हैं? सर, जब तक गवर्नमेंट कॉलेज था उस वक्त मुझे एक प्राइवेट इदारा बता दें जो कंपीट करता था। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? ये जो प्राइवेट इदारे हैं अगर ये मुनाफा नहीं कमाएंगे तो ये चल नहीं सकते, और ये बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं। अगर आप इनकी ट्यूशन फीस देखें और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुआवजा कर लें तो 10 टाइम्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ा सा कम कर दें, उसके डिलक्सपन को कम कर दें। तो ये तो इनके सोचने की बात है, लेकिन ये कि प्राइवेट इदारे, ये अगर तासुर दिया जाए कि प्राइवेट इदारे महंगे नहीं हैं, प्राइवेट इदारे महंगे हैं। मानना मैं 1 रुपया महीना दे के पढ़िया जे सरकारी स्कूल ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। 5 रुपए फीस ही मेरी सालाना। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਹਵਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। 5 रुपए फीस तो आड़ा मास्टर एतजाज है, सुनते नहीं। नहीं तो इनको चाहिए सस्ती तालीम दें, ये तो ठंडी तालीम देने पे लगे हुए हैं। सर, मैं यही बात पूछ रहा था, क्लासों को एसी करने की क्या जरूरत है? जेदे चलदे एसी च हथ नहीं देता। मेरी गल सुनो, इन्नी लकीर दियोगे बच्चे को सबक याद नहीं रहेगा। एयर कंडीशन उन्होंने नींदर आएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा। साढ़े तो पक्खे भी नहीं सुनते। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। और रस्सी ते कपड़ा पा के थल्ले सारा टब्बर इंज पिया हुंदा जिवें खून दे के आए। एक बंदा झल मार रहा सारे। देखिए, तनकीद खाली तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर ऐसी ना लगाएं तो क्या उसको उधर डीसी लगा दें? सर, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਖਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, हमारे साथ एक और सीनियर टीचर मौजूद हैं। जी जनाब। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ घर पे बैठा हुआ कि ये क्या एक मजाक बना दिया है कि तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए और टीचर इंग्लिश मीडियम नहीं है। वाह, और टीचर्स उर्दू मीडियम है, ये तुरफा तमाशा कहते हैं। और उर्दू मीडियम भी नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें बताऊंगा, मैंने 97 में एक आर्टिकल पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, वो जो इमदाद देते थे वो चेक करने के लिए स्कूलों को। ये नवा कोट स्कूल का नाम उन्होंने लिया कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में गए और उन्होंने जाकर कहा कि बच्चों से पूछा, या अल्लाह, ये या अल्लाह मैंने छतरी। वाह। और वो उन्होंने सबसे पूछा, सबने कहा या अल्लाह मैंने छतरी। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसलिए कि वहाँ पे कायदे में छतरी बनी होती है। हाँ, छतरी बनी होती है। वो औले नजर नहीं आ रहे होते। औले नजर नहीं आ रहे होते। फिर उन्होंने टीचर से पूछा, उन्होंने कहा जी या अल्लाह मैंने छतरी। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं है। कहते मैं तो 15 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। एक उस्ताद, मैं कुछ एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ, तो एक साहब पढ़ा रहे थे 5वीं जमात को कि कायदे आज़म मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद बेर सड़ी का इम्तिहान पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। बेर सड़ी यानी बैरिस्ट्री को बेर सड़ी पढ़ रहा हूँ। और भी बहुत से लतीफ़े ऐसे हैं, ये आज के जुबानों बयान में भी हम बेसड़ी ऐड करेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहाँ से आएंगे, क्यों तनीम के साथ मजाक कर रहे हैं। शहर के टीचरों का ये हाल है, गांव के टीचर क्या होंगे? धोती नाल जोगर पा के स्कूल आए होंगे। और देखो ना, ये साढ़े टीचर दियां फीसां पूरी नहीं दियोगे
हैं ते ਅਸੀਂ स्टूडेंट ਨੂੰ एजुकेशन ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ मैं टीचर ही और मैं टीचर हाँ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਆਪ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੀ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਇਮਲੀ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਓ ऐसे डिस्पेंसरी की थोड़े प्यो नौकर असि टीचर सर आपकी हुकूमत जितनी देर रह गई है ना कम से कम इतना तो करें कि चारों हुकूमतों को पाबंद करें इस बात का कि टीचर की इज्जत बहाल की जाए टीचर से जो और ड्यूटीज ली जाती हैं वो ना ली। इतने इश्यूज अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ 5 साल वाह वाह बेटे मैं इतनी आम पोस्ट पे था, कोई चौकीदार नहीं था। नहीं ये किस अहम पोस्ट की आप बात कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो और किसे पता होना चाहिए? तो कोई बताएगा तो मुझे पता होगा ना। पता नहीं घरां च खत सुटदे सन एडी अहम पोस्ट पता नहीं लगा। जी जनाब। किताबें सब्सिडाइज की जानी चाहिए, जितनी सस्ती किताबें होंगी घरों में उतनी ज़्यादा किताबें जाएंगी और बच्चे उतनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे। जिस मुल्क में 30 से 40 रुपए की कॉपी बिक रही है उस मुल्क में गरीब आदमी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाना है? बल्कि वो तो किताब से बिल्कुल ही बेनियाज हो जाएगा कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पढ़ना ना पढ़ना तो दरकिनार। अच्छा जनाब, आज हमने जो गुफ्तगू की है हम उस पर एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं और तमाम सूबाई हुकूमतें इस बात पर फौरन पाबंदी लगाएं कि टीचर्स को, असातिज़ा को ऑड जॉब्स पर नहीं भेजा जाएगा। आप में से कौन है जो इसके हक में है? वाजिबात 100% हम इस करारदाद को आज पास करते हैं। खुदा करे कि तमाम वज़राए आला और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान आज इस गुफ्तगू को सुने और इससे कोई दरस लेने की कोशिश करें। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ज़ुबानो बयान में आज सबसे पहले है मतलाशी। ये गलतुल आम हो चुका है, इसका मतलब समझते हम ये हैं कि तलाश करने वाला, तलाश करने वाला तलाशी होगा। जिस तरह खजाने से खजानची है, तोप से तोपची है, उस सेंस को समझ लें। तलाश से तलाशी, तलाश करने वाला। ये जो लफ्ज मतलाशी है ये एक और चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है और ये फरंगे आसफिया कह रही है, हम नहीं कहते। मतलाशी का मतलब है ख्वारो खस्ता, टूटा हुआ, उजड़ा हुआ, वीरान, बेकार। वैसे तो हकीम ही है ना। हकीम नहीं, इस वक्त मतलाशी फिर मैं ही हुआ। नहीं तो उजड़ा हुआ बेकार। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ 40 ਵਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕੋ ਮਾਚਸ ਲੈਂਦੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वो क्या? ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। और यार पहली बात ये, फरनैल क्या होता है मुझे? क्या ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। फिनाइल। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਏ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੜਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਢੀਠ ਸੀ, ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਸੀ ਸਰ। अच्छा जी, अगला लफ्ज है पूछ-गछ। ये पूछ-गुछ है। हेलो। गाफ के ऊपर पेश है, इसका मंबा हिंदी है जिसमें पूछना गुछना, पुछ-गुछ। ये हिंदी संस्कृत से आई, पंजाबी में भी यही है पुछ-गुछ। पुछ गुछ वे टोलना हुआ, पुछ गुछ वे टोलना हुआ। असली तलफ्ज़ तू सुन बच्चे आवे पुछ गुछ वे। भाई साहब, मुझे ये बताइए कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी कुछ सद्देबाब करने की सोचिए। उन्होंने टीचर ला देंगे ने। पहले हम लोग इनका इलाज कर लेते थे, कुछ सजा दे दी। अब हुकूमत ने ये कानून बना दिया है कि मार नहीं, प्यार, बच्चों को मारना नहीं है। जो मारेगा, आप किसी बच्चे को हाथ लगाते वो खड़ा होकर कहता सर नौकरी करनी है कि नहीं करनी, मैं हुणे सैकटरी ताड़ी कंप्लेंट करके नौकरी को डाल। वाह 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 वाह। सर स्टूडेंट ही इन्हें बदतमीज ने, उस्ताद की गल नहीं मानते। उस्ताद खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किस तरह बात कर रहे हो? किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? चुनाचे ये ना पूछ गिच है ना पूछ गच, ये पूछ गुछ है। आई समझ? आ गई समझ जी। पुछ गुछ। हाँ। जिवें आजकल एजेंसियां इमरान खान को पुछ गुछ कर रही ने। इमरान खान से किस चीज की? कुर्सियां दी करन दी, होर खल्लां दी करनी उन्होंने। क्या जड़ियां ओदियां कुर्सियां चोरी होईयां कसूर।
तुम्हारी बात गुछ गुछ ठीक है। शाह साहब डरो उस वक्त कोलो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਗੁੱਛ ਮਾਰਨੇ। हमारी गोच पर पोच मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, आप इनसे कोई पोच गुछ नहीं कर रहे जो कुछ इस वक्त बकवास कर रहे हैं। आप क्यों उन्हें मुंह लगाते हैं, फिर वो तुर्की में तुर्की जवाब देते हैं। सारा जे पुੱਛ ਗੁੱਛ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਕੀ ਪਾਤਾ ਜੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਧਨੀਆ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਆਲੂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਾ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਪਕੜ ਦਿਓ, ਪਲੇਟ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। अच्छा मेरी बात सुनो हनी, तुम जब भी शो करने आते हो तुम्हें भूख लगी होती बहुत ज्यादा? सर ये पुछ गुछ तुर्की बतुर्की ना लफ्ज़ां तो ही भुख लग जाती। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਦੀ ਲੰਮੀ ਬਰਫੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਰਗੋਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कल हम चिन्योट कर रहे हैं, चिन्योट, अच्छा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट, वहाँ के खाबे तुम्हें बताऊंगा। हेलो ਕੱਲ ਫੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆਈਏ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਕੁੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ। ये कुन्ना नहीं होता, कुन्ना होता है। और अगे हो, ये कुन्ना कुन्नी से निकला, कुन्नी हंडिया को कहते, कच्ची हांडी या घड़ा। हकीम साहब तुसी कदी कुन्ना खादा है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਦਾ ਕਸੂਨਾ ਹੀ ਖਾਦਾ। अच्छा, ये आज नहीं कल करना है सर, कल भी तो साड़ी शाम ते आनी, कल सानू केड़ा तमगे मिलने। यार बाकी वो पुछ कुछ समझ आ गई है सर जी, अजे ते कैम अली शाह जी कोलो पुछ गुछ होनी है। उनसे किस चीज की? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ? अच्छा जी, अगला लफ्ज जो है वो बज़ाहिर हनी का बड़ा फेवरेट है और जेदे का भी, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रोमोशन हरगिज मतलूब नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ है जिसकी गलती की निशानदेही। लोग आमतौर पे चरस कहते हैं। हाय 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 चरस, तो ये बेसिकली चरस है, बर वज़ने जरस। नाला जरस नहीं होता, वो जो घंटी होती है जो ऊंट के या किसी जानवर के गले में लटकाई जाती है, उसको जरस कहते हैं। उसी वजन पर ये चरस है, चरस नहीं। अच्छा, चरस गलत है? हाँ जी, वो गर्दा भी गलत है। बाज लोग माइंड कर जाते हैं कि जी आपके शो में चरस का जिक्र बड़े तवातर से होता है, तो आप यकीन रखिए कि हम इसकी तहकीर करते हैं, तज़हीक करते हैं, इसकी तजलील करने के लिए बैठे हैं। हम लानत भेजते हैं हर उस शख्स पर जो इसकी तरवीज करता है, इसको सेल करता है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦੇਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। अल्लाह करे तू हकीम साहब वर्गा हो जाए। नहीं, ये जो तुम चरस यूं भरना शुरू कर देते हो, रेंज भरी थी, हो रेंज भरी थी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों कच्चे हो। अच्छा, ठीक नहीं आती अच्छा, इधर बना के दिखाना कोई इस तरह से। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। वो एडे मासूम आदमी ने भंग भी इंज भरन ये तो बकवास है, ऐसा ऐसा कोई कर सकता है? इंज करके तो भाई डंडा अच पड़। अच्छा जी, अगला लफ्ज है हड़ताल। आप हैरान होंगे कि ये देखिए कैसे लफ्ज है, ये खालिस किताबत की गलती की बिना पर हड़ताल मार्ज़ वजूद में आया है। कि मैं समझता हूँ बहुत सारे नए अल्फाज कातिबीन ने उर्दू ज़ुबान को या मुख्तलिफ ज़ुबानों को दिए हैं अपनी नाहली की वजह से। अब ये हड़ताल जो है ये हट ताल था, वो टे जो है वो डे समझ लिया गया। ये हट ताल, हट हट्टी को कहते हैं। हट को, हट्टी को जब ताला पड़ जाता है, जब शटर डाउन हो जाता है, तो इसको हट ताल कहते थे। हट ताल, हट्टी ताल, हट ताल, वो हट ताल जो है हड़ताल बन गया। हड़ताल ये ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ कातब ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਤਬ, पेंटर, कातब नहीं है, कातिब। हाँ, कातब ये समझता गल ही ना करो, गूंगे बन जाओ। लगता गूंगे ने गरम हलवा खा लिया। अच्छा, ये गूंगे की बात तो होती रहेगी, इस कातब का एड्रेस मिल सकता है? क्यों, क्या कहना? मैं उसे गोली मारना चाहता हूँ। मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि यहाँ आकर कम से कम इनका मूड अच्छा हो जाता है, वरना जिस तरह की खबरें आजकल आ रही हैं, ये देखें ना आप, फिर मेरा मूड खराब यार।
अच्छा भाई 28 तारीख का कोई जिक्र नहीं नहीं जी सानू लोड़ ही कोई नहीं जी 26 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 26 ਤੇ 2 तेरे पे होंगे वो हड़ताल की बात हो रही है, अदालत के तरफ से बीच में आ गई। नहीं, तो देखिए, क्या है? अच्छा आर्डर 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 जज साहब खुदा के लिए हमारी इस्लाह करें। कौम चाहती है कि लफ्ज हड़ताल होता है या हड़ताल होता है? हड़ताल जैसे हकीम साहब जिस दिन पैदा हुए उस दिन हड़ताल हो गई। क्यों खुशी नाल? नहीं तो इनका दुनिया में आना कोई कम बदतमीजी थी। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਇਰ ਨਾ ਸਾੜਨਾ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨੱਚਣ ਲਈ तो यहाँ वाले गुजरे किधर गए? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ So जी हज़रात, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी एक खबर के मुताबिक कैलिफोर्निया में एक बकरी अपने मालिक के साथ समंदर की उठती लहरों पर महारत से सर्फिंग करती है। वाह जी वाह, बकरी सर्फिंग करती है। हकीम साहब ने एक बकरी रखी सी जनाब, समंदर लब्बा नहीं, उन्हें छप्पड़ ते लै गए ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਕੀਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਪੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀ ਡਰਦੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ ਜਨਾਬ। वो क्यों? ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ठंडा पानी, ये क्या मतलब? ਬੱਕਰੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਹਕੀਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋ ਮਰਾਸੀ ਕੱਟੋ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਹਕੀਮ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਕਰੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੇ। ਮਜ਼ੂਰ ਬੱਕਰੀ ਜਨਾਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾਈ। यार फजूल बात है, टेबल की टांग को मानने वाली है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅੱਧੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ, ਪੇਸਟਰੀ, ਨਿੰਮਕੋ ਰੱਖੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਟੇਬਲ ਅਖੀਰ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਬੱਕਰੀ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮਾਮਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾੜਨ ਦੇ। एक खबर के मुताबिक किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, वीना मलिक ने बरतानवी फिल्म साइन कर ली। हेलो जी, रौला मुक गया। ਇਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਟੈਟੂਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੀਰਾ ਦਾ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਫੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਘਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। You know, Afi, this is the Time Cruise talk to me and the... टाइम क्रूज कौन है? Time Cruise. This is ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ the... ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। टॉम क्रूज है उसका नाम। No, no, Afi, Time Cruise. ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇਬਲ ਘਟ ਗਏ ਅਗਲੇ। नहीं, आपके पास कोई फिल्म है? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। You know, Afi, I am the very good football player. पर आजकल नहीं मैं खेल रही। क्यों नहीं खेलती हैं आजकल? You know, Afi, there is no wind in football and tush. No wind? Yes, open air. किसी को समझ आया कि क्या कह रही? Afi, this is the my English as the ਬਾਜੀ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੋਲੀ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਕੱਲੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਰੈਫਰੀ ਸੀਟ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो रेफरी किधर है? ਉਹ ਖਰਾਦੀਏ ਕੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟੋਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੋਤਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਦੇ। एक खबर के मुताबिक ख्वाजा सराओं का कहना है कि रिहाइश के लिए बहुत दिक्कत होती है, कोई किराए का मकान नहीं देता, इसलिए हमारे लिए अलग हाउसिंग सोसाइटी कायम की जाए। सारा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। नहीं, क्यों नहीं देते? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਇੰਜਨ ਟੁਰਨੀਆਂ ਬਤਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ। हाँ जी, अल्लाह तो 28 तारीख ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ। बकवास ना तू कोसला रहा है। गवर्नमेंट पहले बेचारी गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। गवर्नमेंट क्या होता है? ਓਏ ਗवर्नमेंट ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਦਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। मैं आफ्ताब पायन किस तरफ से हो गया? ਮੈਂ ਭੈਣ ਆਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੋ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਰੀ। ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਛਿਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੇਬ ਕਾਟ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਬਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। जिस दिन हमारा ये केस खत्म हुआ, एक सेलिब्रेशन होगी, सारा शहर आएगा, जश्न होगा, ये सब भी आएंगे। कौन आएंगे? ये खुसरे चारों। ਹਾਏ ਹਾਏ, ये क्या हुआ? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਹੈ। ਹਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ, आप ये ना करें। ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਵੇ ਮਾਰੀਆਂ
जा निकी जई हाँ करके दिल ले जा निकी जई हाँ करके। लगता है शाह साहब बाहर आ गए ना, खुसरा अंदर हो गया। हलाका अपन देखो उसका मैनरिज्म देखो। भाई ने साड़ी कॉलोनी नहीं बनानी, तुसी भैन तोड़ दी नहीं। मैंने बनानी है ना करना, आप खुसरों की ब्रूक शील्ड है। कितने ध्यान है। अच्छा जी, आप इस कॉलोनी में क्या क्या सहूलियात पसंद करेंगी? एलियन सेफ्टियां ये सारियां फ्री होनी चाहिए, तो नहीं सारे को 35 रुपए खर्चे जाने सर जी गल। अच्छा जी, एक तो चले, फिर सेफ्टियां और क्या? सेफ्टियां बस तो घुंगरू फ्री होनी चाहिए सानू। नहीं, अब हर चीज आपको फ्री मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसी सेफ्टियां मंगनी, ऐसी लैपटॉप मांग लेने। लैपटॉप भी चंगा है नहीं, अम्मी दी फेसबुक बनावांगी। सर तुहानू पता साडी वेब की होनी है? www.thumka.com। बात सुनो, हेलो बात सुनो, आनी खुसरी है। हाँ यार, नहीं खुशी में चंगा भाई नजर ना पाए नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, कॉलोनी बना के तुम क्या कर लोगी? रहना होंदा, ओदे विच सोना होंदा, और इसी तरीका भुगनी पानी की हो गया तुम? मैं आपकी बात अच्छा खासा समझ गया था अन्नी खुसरी है, आप फिर पर्सनल हो जाती है मेरे। फिर अन्नी खुसरी है मेरी बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ लंघ गई। वैसे आप तो सब ज्यादती ही, मैंने पता है बिस्ती बुस्ती भी हो रही, तो सानू मिलना भी काक नहीं। हद अदब गुस्ताख, हद अदब, अदब हद अदब, अदब हद हम शहजादा सलीम हैं। क्यों नहीं, इसमें क्या शक आज हम शहजादा सलीम हैं। तो फिर अब्बा ਤੁਹਾਡਾ जी? मलका आलिया किथे? किधर है मलका आलिया? मुझे क्या? मलका आलिया बैठी। ये तो मलका कालिया है। हमारे इज्जत एहतराम का ख्याल रखा जाए। ये हल बना घटा घुटा झाड़ के उठ पे, ये पता नहीं पेटियां थले बड़े होंगे। हमारी तौहीन हो रही है। तो पहले कदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਬਣਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। आली जा, क्या है? हम शहजादा सलीम हैं। वो तो हम हैं। हम भी हैं। सलीम सदके जावा, जिस दिन ये भाई आते ना, तेरी वल्दियत दा रौला पै जाता है। तुमको शायद पता नहीं कि हम वजीरों के बच्चे हैं। मासी वजीरां दा ते हो सकना है, वजीरां दा नहीं। कंधार को चिरागा कर दिया जाए। अब्बा जी साड़ गया कंधार ते रहा ही नहीं, इन्ना चिरागा करा दो तो धुआं ही निकलदा हुण। जिन्ना चिरागा कराया तो कंधार दे अनारां दी बजाय मलोक होण लग पैंदे। अमान चंगे भले सेब हुंदे सी, हुण सारे बताऊं बन गए सी। इन्ना चिरागा कराया, जलील कराता, मिस्त्रियां दा इलाका लगन लग पिया। ये हमारी सल्तनत में क्या चल रहा है? चौबदार, ये गुलामों की तलवारें हम पे उठेंगी। ये कौन है ये शख्स? आपके अबू जी है, कितनी बार समझाऊं? आलम पनाही ते ਤੁਹਾਡੇ अब्बे दा भी रौला निकला है। ये हम पे बहतान है। अगर तुम हमारे दादा हजूर हो तो फारसी बोल के दिखाई जाए। अभी बोल के दिखाते हैं। इन चीस्त जेदे हुस्न यूसुफ तमे ईसायत बेजदारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हा दारी जी हजरदारी। क्या था? ये को ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ फारसी है। ये हकीकत अस्त, हकीकत अस्त, हकीकत अस्त। लगना इन्हू अस्त लगे। अस्तां दी दवाई लवो कोई। हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अस्त ते चंगे भले बंदे नू कमजोर कर देंदे। आफ्ताब देखना तुसी दोवें बादशाह हो, किते इत्थे अस्तो गिरेबान हो। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।